anyone? Exercise 7.1 on page 131. Example based on epsilon delta definition of limit. For given epsilon greater than 0, we have to find the delta greater than 0 such that whenever x is very near to a, x minus a mod is less than delta, we must have mod f of x minus l is less than epsilon. तो गिवन एग्जांपल को देखते हुए हम जो हमारे स्टैंडर्ड सिंबल्स है वो मेंशन कर देते हैं. तो लेट f of x is equal to 3x plus 2, a is minus 3 and l is minus. अब जब भी इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज गिवन. तो लेट इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन और f of x l के इप्सिलॉन डिस्टेंस के करीब है. तो इसको हम सिंपलीफाई करते हैं. कंसीडर mod f of x minus l is less than epsilon, that is mod 3x plus 2 minus of minus 7 is less than epsilon, which implies mod 3x minus of minus 7 plus 2 plus 9 is less than epsilon. तो यहाँ से 3 ब्रैकेट में कॉमन लिया जा सकता है. x plus 3 is less than epsilon. mod a into mod b के फॉर्म में, तो mod a into mod b is less than epsilon. ऑब्वियस प्रॉपर्टी है, लिखना चाहे तो इधर लिख सकते हैं using mod a into b is equal to mod a into mod b. जहां-जहां पॉसिबल हो रिजल्ट लिखना वो मेंशन करते हैं. mod of 3 is 3. अब हमको चाहिए था mod x minus a. a हमारा -3 है, तो ये जो एक्सप्रेशन है x minus a फॉर्म में ही रहने देंगे. तो दिस कैन बी रिटन एज x minus of -3 less than epsilon. And this implies इसी को डिवाइड करते हैं x minus of -3 mod is less than epsilon by 3. हमको ऐसे डेल्टा चाहिए था जो mod x minus a less than delta की इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता हो. तो टेक delta is equal to epsilon by 3. Since epsilon is greater than 0, so epsilon by 3 is greater than 0. तो इस तरह का डेल्टा मिल जाएगा. जो भी epsilon गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली हमको डेल्टा इक्वल टू epsilon by 3 मिल जाएगा. तो पूरा सेंटेंस लिखेंगे therefore for given epsilon greater than 0 there exists symbol है a delta equal to epsilon by 3 which is also greater than 0 such that mod f of x minus l is less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta. That is हमारे जो एक्चुअल f of x a उनके फॉर्म में लिखे थे. तो that is mod of x minus of -3 less than epsilon by 3 imply mod f of x क्या है 3x plus 2 minus l क्या है -7 is less than epsilon. ये जो लैंग्वेज है mod f of x minus l less than epsilon whenever mod x minus a less than delta. इसी को बोलने का दूसरा तरीका mod x minus a less than delta imply mod f of x minus l less than epsilon. तो ये सिंबॉलिक लैंग्वेज में आ गया, which means limit of 3x plus 2 when x tends to -3 a is equal to -2. Example number 3, limit x square minus 1 when x tends to 2 is equal to 3. अब दिखने के लिए तो सिंपल दिखता है. इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स से, यदि वैसा देखें तो 2 का स्क्वायर 4 -1 तो 3 दिखता है. ऑब्वियस सा रिजल्ट है, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स से इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करना. तो लिखा होगा बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दिस, या फिर वो पूरी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज के साथ में. तो हमारे स्टैंडर्ड नोटेशन दे दो पहले. तो लेट f of x is equal to x square minus 1 a is equal to 2
and L is equal to 5. ठीक है, let epsilon greater than 0 be given. Consider mod f of x minus L less than epsilon, that is mod x square minus 1 ये f of x है minus L ये 3 less than epsilon. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जितना होता है that is x square minus 4 less than epsilon, that is x minus 2 x plus 2 is less than epsilon. यहाँ तक तो सब ठीक है. mod a into b के फॉर्म में, तो mod a mod b less than epsilon. अब यहाँ दोनों एक्सप्रेशन में x इन्वॉल्व होते दिख रहा है. अब जरा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा. mod x minus 2 ये किसके समान दिख रहा है? mod x minus a के समान. mod x minus a less than डेल्टा हमको चाहिए था. mod x minus a less than डेल्टा चाहिए था. बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम a के नेबरहुड में वर्क करना चाह रहे हैं. a के जितना क्लोज नेबरहुड होगा उतना एक्यूरेसी हमको f of x और l के बीच में मिलेगी. तो mod x minus 2 is less than डेल्टा था, लेकिन साथ साथ में एक और x का एक्सप्रेशन है. तो जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो यहां पर हमको अपनी तरफ से एक इनिशियल चॉइस करनी होती है. इनिशियली we take delta is equal to 1 which is obviously greater than 0. Very important point. Initially we take delta equal to 1. बहुत दूर है वैसे तो, बट दो x के एक्सप्रेशन है, इसका एक्सप्रेशन लेस देन डेल्टा से मिल जाएगा. व्हाट अबाउट mod x plus 2? तो ये फाइंड करने के लिए we take initially delta equal to 1 so that mod x minus 2 less than 1, लेस देन डेल्टा की जगह लेस देन 1 लिख दिया. अब mod x minus 2 लेस देन 1 का मतलब क्या है? नंबर लाइन पे देखो, ये 2 है, x का डिस्टेंस 2 से लेस देन 1 है. इसका मतलब x कहां लाई करेगा, किस किस के बीच में होना चाहिए? फिर से 0 से 1 एंड 3. कैसे समझा उसको? ये जो नंबर है इस नंबर के लेफ्ट में माइनस, इस नंबर के राइट में प्लस. तो यहां पर 2 minus 1 2 plus 1, 2 minus 1 2 plus 1. इसका मतलब हो गया x is lying between 1 and 3. x का रिस्ट्रिक्शंस मिल गए. अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये रिस्ट्रिक्शन हमको जो दूसरा एक्सप्रेशन होगा x का वो फाइंड करने में हेल्प करेगा. क्या चाहिए हमको? x plus 2. तो पूरी इनइक्वालिटी में प्लस 2 कर देते हैं. तो देयर दिस इंप्लाई 1 plus 2 less than x plus 2 less than 3 plus 2. तो देयरफॉर 3 less than x plus 2 less than 5. हमको रिस्ट्रिक्शन चाहिए. किससे लेस है ये चाहिए, किससे बड़ा है? वो तो 0 से बड़ा है. तो देयरफॉर mod x plus 2 एक काम और कर लेते हैं. देयरफॉर x plus 2 is less than 5. रिस्ट्रिक्शन मिल गया. Therefore, और mod x plus 2 is less than 5. Therefore, if you imply a therefore, तो इसका रिस्ट्रिक्शन मिल गया. अब हमारे पास दो रिस्ट्रिक्शंस मिल रहे हैं. एक तो लेस देन 5 मिल रहा है और यहाँ पर डेल्टा को 1 लिया था. तो जब ये दो चीज मिल रही हो तो पहले तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं. इसको कुछ नंबर देके, तो नंबर देके स्टार. तो therefore star becomes mod x minus 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं. mod x plus 2 less than epsilon means mod x minus 2 into 5 is less than epsilon. This is less than epsilon. ये पुट कर दिया. This gives mod x minus 2 is less than epsilon by 2 और 5 epsilon by 5. पहले क्या चूज किया था हमने? mod x minus 2 is less than 1. इनिशियल चॉइस थी. अब ये पूरा प्रोसेस हमको इसके रिस्ट्रिक्शन फाइंड करने के लिए लगे. इसका रिस्ट्रिक्शन आया लेस देन 5. यदि इसको यहाँ पर पुट कर दिया तो पुट करने से अब mod x minus 2 is less than epsilon by 5. तो इनमें से छोटा वैल्यू किसका होगा?
इप्सिलॉन बाय 5 या 1 में से डिपेंड करेगा, इप्सिलॉन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, इप्सिलॉन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब इस तरह के दो सिचुएशन है तो दोनों में से जो स्मॉलेस्ट होगा, जो मिनिमम होगा, वो हमारा रिक्वायर्ड डेल्टा होगा। तो वो इनिशियल चॉइस थी। नाउ टेक डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 और फिर यहां से जो भी कुछ आया हो इप्सिलॉन बाय 5। ऑब्वियसली दिस विल बी ग्रेटर देन 0, 1 तो ग्रेटर देन 0, इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, इप्सिलॉन बाय 5 विल बी ग्रेटर देन 0। ये दोनों में से मिनिमम होने की पॉसिबिलिटी किसकी दिखती है? इप्सिलॉन बाय, बट इट डिपेंड्स ऑन इप्सिलॉन। अब वैसे इप्सिलॉन को यदि मान लो 5.1 कहा, हालांकि बहुत दूर होगा वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहां पर मिनिमम ऑफ दिस टू, मिनिमम ऑफ दिस टू, जो भी दोनों में से मिनिमम होगा वो हमारा डेल्टा। तो देयरफॉर कंप्लीट, देयरफॉर फॉर गिवन इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a delta is equal to minimum of 1 epsilon by 5 such that mod x minus a less than delta imply mod f of x minus l less than epsilon, that is mod x minus a क्या था 2 less than delta, डेल्टा की चॉइस लिखिए imply mod f of x x square minus 1 minus L 3 is less than epsilon, imply limit x square minus 1 when x tends to 2 is equal to 3, hence proof। epsilon delta definition से प्रूफ करना है लिमिट x square plus x plus 1 when x tends to 1 is equal to 3। algebra of limit से तो क्लियर है, 1 plus 1 plus 1 is 3। तो स्टैंडर्ड पहले नोटेशन देख लेते हैं, f of x a और l, epsilon greater than 0 be given, we consider mod f of x minus l less than epsilon, f of x रख दो, l रख दो, 1 minus 3 is minus 2। अब इसके फैक्टर्स होते हैं क्या? -2 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिससे एडिशन 1 हो, क्या होगा? 2 minus 1, product is -2, addition is, तो फैक्टर क्या बन गया? x plus 2 x minus 1। तो therefore और this imply x plus 2 x minus 1 is less than epsilon। mod a into b के फॉर्म में, mod a mod b less than epsilon, x tends to 1 है, इसका मतलब mod x minus 1 less than delta की बात कर रहे हैं, तो इसका रिस्ट्रिक्शन तो less than delta है ऑब्वियसली हो गया, लेकिन ये x plus 2 का mod है, इसका रिस्ट्रिक्शन फाइंड करने के लिए इनिशियल चॉइस करनी पड़ेगी। इसको कुछ नंबर भी दे दो, इनिशियली टेक delta is equal to 1 so that mod x minus 1 less than delta, that is mod x minus 1 less than 1 imply किसके बीच में होगा? x लाइन बिटवीन ये 1 मतलब यहां दे देते ये 1 ये वाला 1 कितने 1 के डिस्टेंस में होना? तो लेफ्ट में और राइट में, लेफ्ट में 1 माइनस करो, राइट में 1 प्लस करो, तो 1 minus 1 1 plus 1 that is 0 2, x line between 0 and 4। हमको रिस्ट्रिक्शन किस लिए चाहिए? mod x plus 2 के लिए, तो प्लस 2 कर दो, 0 plus 2 is less than x plus 2 less than x 2 plus 2 plus 2, so therefore 2 is less than x plus 2 is less than 4। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन को नाउ स्टार इंप्लाई mod x plus 2 into mod x minus 1, x plus 2 is less than 4 है, तो this gives mod x plus 2 is also less than 4, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो mod x plus 2 is less than 4, तो mod x plus 2 into mod x minus 1, mod x minus 1 को रहने देते हैं, is less than, इसके लिए is less than, और ऐसा बोलो दोनों जगह mod x minus 1 दे दिया,
एक ही बात है। तो इज लेस देन 4 into mod x minus 1, 4 into mod x minus 1, ठीक है। हमको लेकिन चाहिए क्या था, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन, यहीं से दे दो स्टार, दिस इज लेस देन, दोनों के बीच में ये नंबर इंट्रोड्यूस कर दे, mod x plus 2 is less than 4 times mod x minus 1 as it is, और जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है is less than एप्सिलॉन। तो नाउ mod x minus 1 is less than एप्सिलॉन by 4। हमने इसके पहले mod x minus 1 is less than 1 बोला था as initial choice, तो दो नंबर लिख रहे हैं, तो दोनों में से जो स्मॉलेस्ट होगा, जो 1 के ज्यादा क्लोज नेबरहुड फॉर्म करेगा, वो हम कंसीडर कर लेते हैं। तो टेक डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 एप्सिलॉन बाय 4, ऑफ कोर्स दिस विल बी ग्रेटर देन 0। mod x minus a less than delta implies mod f of x minus l less than epsilon। ये डेल्टा के लिए, दैट इज सब एक्सप्रेशन में रख दो, x माइनस a क्या था 1 लेस देन डेल्टा इम्प्लाई f of x x square plus x plus 1 l minus 3 is less than epsilon। So this means limit x square plus x plus 1 when x tends to 1 is equal to 3, hence 2। तो जब इस तरह की चीजें शो करनी होती है तो वी हैव टू फाइंड अ डेल्टा। तो दो तरह के प्रॉब्लम देखे हमने, लीनियर एक्सप्रेशन के, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। लीनियर एक्सप्रेशन में वो एक्सप्रेशन को ही सॉल्व करते जब हम जाते हैं mod f of x minus l को, तो वहां से हमको डेल्टा की चॉइस डायरेक्टली मिल जाती है। लेकिन जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो दो एक्सप्रेशन होने की वजह से एक इनिशियली चूज करना होता है और उसकी हेल्प से हम और एक और डेल्टा जो यहां पर दिखता है एप्सिलॉन के टर्म में, दोनों में से जो मिनिमम होगा रिक्वायर्ड डेल्टा मान के हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब यहां जो मेथड मेंशन की हुए, जस्ट एक, यदि हमारा एक्सप्रेशन f of x by g of x for x tends to a 0/0 फॉर्म में आ रहा है, इसका क्या मतलब हो गया? x की वैल्यू यदि हम a में f of x में रख रहे हैं, मतलब वो f of x को वैनिश कर रहा है। और यदि डिवीजन एल्गोरिथम, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम देखा होगा, तो जब f of a 0 हो रहा है, इसका मतलब f of x को हम x minus a से डिवाइड करें तो विल गेट रिमाइंडर 0। तो जब a f of x को वैनिश कर रहा है, इसका मतलब a is 0 of the polynomial f of x, or we can say that x minus a is a factor of f of x। Similarly, जब x की वैल्यू a g of x में रखें और वो यदि वैनिश हो रहा हो, तो we will say that g of x को यदि x minus a से डिवाइड करें, क्वोशंट होगा कुछ भी, रिमाइंडर इज 0। मतलब g of x का भी x minus a एक फैक्टर है। तो जब हम दोनों को फैक्टराइज कर लें तो दोनों में x minus a दिखेगा, और x tends to a हो रहा है, इसका मतलब x is not equal to a है, तो x minus a is not equal to 0। We can divide numerator and denominator by x minus a, और जो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन होगा अब उसको अलजेब्रा ऑफ लिमिट से सॉल्व किया जा सकेगा। एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 141 पर क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट लेते हैं, पॉलिनोमियल x में हो, z में हो, y में हो, कांसेप्ट आते हैं। पहले तो वैल्यू के साथ देखो होता क्या है, z यदि 2 रहा तो क्या होगा, 4 माइनस 10 प्लस 6, यानी 10 माइनस 10 0, डिनोमिनेटर में 4 माइनस 4 0, 0/0 फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो फैक्टर देखो, लिमिट z टेंड्स टू 2, डिनोमिनेटर में तो दिखता है z minus 2, z plus 2, न्यूमरेटर के फैक्टर सोचो। 6 के ऐसे दो पार्ट चाहिए जिसका एडिशन -5 है, तो 3 2 जा 6 होता है, लेकिन एडिशन -5 होने के लिए -3 -2 ले लेंगे, तो प्रोडक्ट इज 6, एडिशन इज -5। तो लिख सकते हैं
z minus 2 z minus 3 दिख रहा है कॉमन फैक्टर है z minus 2 तो z minus 2 को कट करने के पहले गारंटी देना पड़ेगा इट इज नॉट इक्वल टू 0 रीजन में मेंशन करो as z tends to 2 therefore z is not equal to 2 therefore z minus 2 is not equal to 0 तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड कैंसिल डिवाइड किया जा सकता है मैथमेटिकल टर्म इज डिवाइड किया जा सकता है तो क्या रहेंगे ये z tends to 2 क्या बचा z minus 3 upon z रीजन है साइन में डिवाइड हो गया ऐसा भी शो कर सकते हैं डिवाइड हो गया अब फिर से पुट करके देखो तो 2 minus 3 minus 1 मतलब आंसर मिल रहा है 0/0 फॉर्म से हम फ्री हो गए इसका मतलब आंसर है तो फाइनल वैल्यू मिलेगी अच्छा न्यूमरेटर चेक किया 2 minus 3 minus 1 हो सकता है डिनोमिनेटर 0 आ जाए हो सकता है तो न्यूमरेटर नॉन जीरो है डिनोमिनेटर 0 हो तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है यदि डिनोमिनेटर की वैल्यू नॉन जीरो आ जाए और न्यूमरेटर 0 आता हो लिमिट इज 0 और दोनों यदि नंबर आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों 0/0 आए तो हमको आगे उसको और लेके जाना पड़ेगा तो यहां का काम बन रहा है तो देयरफॉर फाइनली लिखो लिमिट z² minus 5z plus 6 upon z minus 4 is minus 1/4 when z tends to 2 तो इस पर बेस अभी ये जो एक्सरसाइज के और प्रॉब्लम है ये सॉल्व किए जा सकते हैं आज के लिए हम यही रुकते हैं कल कंटिन्यू करेंगे टिल देन टेक केयर बाय बाय